So, welcome back, dear students, in this new lesson and new session of this online teaching on Gestalt learning. And I hope you have watched all four videos of the previous chapter, which we have finished. That is Fun They Had. As you know, we have finished that chapter, and I have uploaded around four videos related with that chapter. And a PDF would be uploaded soon. And if you need it urgently, you can post it in comment, and I would try to upload the PDFs. Or later on, I can give you all the study materials, all the PDFs which are being shown in these sessions at one place. So that is it. And I hope you are enjoying the lessons. सो प्यारे विद्यार्थियों, हम फन दे हैड को 4 हिस्सों में कवर कर चुके हैं। आप उसको पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। 4 वीडियोस के अपलोड हो चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड टू बी स्लाइटली कॉम्प्रिहेंसिव. So in initial videos, I was not that elaborate, but now as the session progresses, I would be a bit more comprehensive. तो मेरे विद्यार्थियों, पुराने जो यूट्यूब के जो मेरे लेसन्स हैं उसमें मैंने कहा था कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव रहूँगा, विस्तार से चीज़ें बताऊँगा। और जो आपको क्लासरूम में आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या क्लासरूम में जो सिर्फ कट टू कट जो पोएम के बारे में या टेक्स्ट के बारे में बातें बताकर छोड़ दी जाती हैं, वैसा ना करके मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। तो इसका उद्देश्य ये होगा कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में ना बैठें बल्कि लैंग्वेज भी सीखें। So, dear students, I would try to give you a broad perspective, a comprehensive view about the lesson and the text, so that you not only excel in the exam, but you can also, learn the language. एंड एक चीज़ जो इसके साथ आपको होती है कि अगर पाठ जो है, टेक्स्ट आपका जो है, उससे ज़्यादा अगर बढ़ा के चीज़ें बताई जाती हैं, मैग्नीफाई करके बताई जाती हैं, तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। सो इफ आई टेल यू समथिंग मोर अबाउट एनी लेसन, देन यू रिमेंबर इट। ओके, यू रिमेंबर इट वेल। आपको बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हैं, स्टिल यू रिमेंबर समथिंग। यू फॉरगेट मेनी थिंग्स, स्टिल यू रिमेंबर समथिंग. So that is why I try to include as many as parts and sections as it is viable, as it is doable. तो इसलिए मैं जितना अधिक से अधिक पार्ट इसमें बना सकता हूँ, वो मैं बना रहा हूँ। तो ये जो कहानी, ये जो कविता है, ये बहुत छोटी सी कविता है. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम. इट इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही इज एन अमेरिकन पोएट, a very well known poet for writing about for mixing big apocalyptic natural phenomena with human nature. And for no he's known for giving very deep complex ideas in a very simple and non serious manner, in a lucid manner. ये जाने जाते हैं इसलिए कि ये बड़े कवि हैं जो कि प्रकृति और जीवन की बड़ी घटनाओं को बड़े ही सलीके से, तरीके से हमारे मानव जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनसे जोड़ देते हैं, इसलिए इनको जाना जाता है. ये अमेरिका के बड़े कवि हैं और यह जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये 1916 में लिखी गई थी. One thing, as I already stated, this poem was written in 1916, and as I have already stated that here I will give you a very small introduction of the writer, because I intend to bring a special series on the authors of this chapter or this lesson. So later on, when we have covered all the chapters, I will bring another session, another series of lectures, series of lessons about your authors. As of now, you just know that Robert Frost is an American poet, and he wrote this poem for his friend. Though it is stated that it is said that this poem is not on a very serious note, though it is very philosophical. हालांकि यह कविता उन्होंने अपने मित्र के लिए लिखी थी और यह कविता बहुत दार्शनिक टोन लिए हुए अपने रूप में, जो कि हम पढ़ेंगे आगे. लेकिन इसका एक ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ मजाक में लिख दी थी, दोस्त के लिए मजाक में लिख दी थी, जो हमेशा कंफ्यूज रहता था.
You also know there are your friends who are always in two minds. दो दिमाग मतलब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. Two minds मतलब कंफ्यूज रहना. They are always in two minds. आज स्कूल आना है कि नहीं आना है, इनसे लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, उसको उससे मारपीट करनी है कि नहीं करनी. They always remain in two minds, is it not? But there are people who always remain in, they are always sure of their actions and decisions. So this poem is not for them. This poem is not actually for those kind of people. ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो बहुत एक बीच के भी लोग हैं जो कभी कभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं लेकिन कभी कभी चीजें डिसाइड कर लेते हैं और वस्तुतः लाइफ में वही चीजें ठीक करते हैं. ऐसा इस कवि का मानना है, मेरा मानना नहीं है, मेरा कुछ मानना नहीं है. क्योंकि क्या कैसे जीवन में कब कौन सा परिवर्तन होता है, वी कांट प्रेडिक्ट. लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. आई पर्सनली बिलीव दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस. जीवन में जो चीजें होती हैं वो एक संयोग होती हैं, उन्हीं संयोग को हम अपना भाग्य मानते हैं. सो वी विल सी दीज थिंग्स लेटर ऑन टुमारो. टुडे दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर दिस road not taken, and as we always do, we will first of all do some language related exercise, language related things in this uh, session about this poem, The Road Not Taken. ओके. सो इस पाठ में हम, इस लेसन में हम जो है जो कविता का जो लैंग्वेज का हिस्सा है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि फन दे हेड में भी मैंने ये किया था कि यहाँ पर मैं आपको पहले तो कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं जो ग्लॉसरी होती है सिंपली, वो वहाँ यहाँ पर दी हुई है. और इसके साथ साथ और इसमें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस इंग्लिश वर्ड के साथ हमने यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर जो है प्रोनाउंसिएशन एक नाइटमेयर होता है, गलत होता है. वी ऑफन मिस्टेक while pronouncing this English language words, often, not always, often, because this language is not spoken correctly all the time in our environment, and sometimes teacher also make errors which can be avoided only by being conscious, practicing things properly, and listening to the native like speakers. We are, as I stated earlier, that English is second language for us. है ना? So we speak English and our pronunciation is called received pronunciation. Okay. RP, it is called received pronunciation because we have learnt it from native speakers. And also our pronunciation is Indianized. There is a term called Queen's English. Okay, there is a term called Queen's English. So the standard pronunciation which is emulated, which is followed, जो मानक pronunciation है जो कि हम follow करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है Queen's English का, है ना? मानक जो अंग्रेजी होती है उसको. But after a movement of kind of the post-colonial studies emerged later on, these scholars insisted that we should be confident even in our own pronunciations. What is our own pronunciation? Our own pronunciation is affected by our native languages. What are our native languages? Native language is, just a minute. Our pronunciation is affected by native languages, our native tongue. That is native tongue. Hindi, Tamil, Haryanvi. These are native languages we speak. So our pronunciation is impacted by these, languages. So our pronunciation is called received pronunciation. Therefore, there is only one way to pronounce a word correctly, that is to listen it being pronounced correctly. Okay. So that is obviously you can do by your own, but here is a shortcut which means we know it when I have invented it. I use it. It's better to write the word in Hindi. ठीक है. तो उच्चारण हम जो है करते हैं, उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण चीज है
और हम जानते हैं कि हम क्वींस अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी है। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन इंग्लैंड। हाँ, दिस इज अनदर सिनेरियो विच आई forgot to mention. There are two models of English: British English and American English. We generally follow British English. Now there are, deviations, and there are people who also follow American English. So there are slight differences in British English and American English. उच्चारण जो है हम क्वींस अंग्रेजी के हिसाब से करते हैं, वो एक मानक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण माना जाता है। और उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, खासकर बोलने के मामले में। तो सबसे जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि उसको हिंदी में लिख दिया जाए। अब दूसरी बात है कि हम दो तरीके का मॉडल फॉलो करते हैं ग्रामर के रूप में, बोलने में, लिखने में। एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। अब इंडिया में जो इंग्लिश फॉलो की जाती है उसको ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं बेसिकली, मतलब अंग्रेज जो लोग जिस तरह से चीजें बोलते हैं करते हैं, हम उसको एमुलेट करते हैं। बट अभी आधुनिक समय में अमेरिकन इंग्लिश जो है फॉलो की जा रही है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में कुछ स्पेलिंग्स अंतर होते हैं। जैसे नेबर की स्पेलिंग आप देखेंगे, प्रोग्राम की स्पेलिंग आप देखेंगे, वो अमेरिका में अलग होती है और ब्रिटिश में। कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि ब्रिटिश में लाइवलीहुड होता है, लाइवलीहुड होता है जीविका, इसमें इसी को लिवलीहुड बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा अंतर है बहुत सारी चीजों का। बहुत सारे वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में वैसे प्रोनाउंस होते हैं जैसे हम हिंदी में उनको ठेठ में या भोजपुरी में प्रोनाउंस कर दें, वैसे ही प्रोनाउंस होते हैं। सो इट्स अ बिग डिफरेंस। समटाइम यू इफ यू जस्ट देयर इज अ हैक, एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला है कि अगर आप कोई वर्ड गलत बोल दें जो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से गलत हो, तो कह दें कि ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होगा। बट ऐसा ना करें। इट्स एडवाइजेबल दैट यू लर्न द स्टैंडर्ड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड ऑलवेज focus on pronunciation as well. Do not focus only on word meaning and meaning in Hindi or English, no, or parts of speech. Always focus on pronunciation. Always check pronunciation once before. Once you have remembered the word, or you feel that you have remembered the word, even then you focus on the pronunciation and check it. जब भी कभी आप किसी अंग्रेजी के शब्द को देखें तो उसमें उच्चारण पर जरूर उसको एक बार देख लें। अभी के समय में आपके पास एक बहुत बड़ी सुविधा है कि हर जगह डिजिटल मीन्स मौजूद है। आप गूगल पर कोई भी वर्ड डाल के उसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। सो प्लीज डू इट, आपके आगे के जीवन में बहुत काम आएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्ड मीनिंग है, इसको ये वर्ड्स आपके पोएम में आए हैं, जिसको हम कल जब पाठ पढ़ेंगे अगले सेशन में तो हम इसको देखेंगे। डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज्ड, separated and went into different directions. This is called diverge. अलग अलग होना, दो दिशाओं में बंटना। ठीक है। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज, श्रब्स एंड प्लांट्स, झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों में, झाड़ियां और छोटे छोटे घने पौधे। ये तो ठीक है, यहाँ दे दिया। अंडरग्रोथ बेसिकली मीन्स एनी ग्रोथ विच इज बिलो समथिंग, है ना, लाइक ग्रोथ इन अंडर a टीन शेड or any shade or beneath a surface, that is called undergrowth. And then fair, fair means अच्छा, सुंदर। एक और भी होता है fair, उसको भी ध्यान दे लें, that is another word. इसका मीन्स होता है किराया। ठीक है, तो ये इसको होमोनिम बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, these are two different words. Okay, so claim, claim मतलब दावा करना। This is a word you can use in your everyday language, so this is important. Be careful about it. Demand for something due to a better opinion or right, a better opinion or right. दावा, अधिकार। grassy, grassy, you see here, grassy, covered with grass. It's a grassy field. क्या क्या ग्रेसी हो सकता है? बहुत कुछ ग्रेसी हो सकता है, सो यू कैन यूज इट। वांटेड वियर, ये पोयम में इसी तरह आया है, बेटर है कि इसको ऐसे ही याद कर लें। वांटेड वियर, वेयर, वांटेड वेयर। हैड नॉट बीन यूज्ड, हैड नॉट बीन यूज्ड वर्क ऑन मच, जिसमें ऐसा कोई रास्ता जिस पे बहुत ज्यादा उपयोग ना किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा ना चला गया हो। जैसे आपके स्कूल जाने के दो तीन रास्ते होते हैं, तो उसमें एक ऐसा रास्ता होता है जो कि बच्चे उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। आपके घर जाने के ऐसे रास्ते होते हैं जिसका बहुत आप उपयोग नहीं करते हैं। सो देयर आर वेज टू रीच योर हाउस और स्कूल which are not taken by people frequently, they are taken seldom, कभी कभी उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको कहते हैं वांटेड वेयर।
ट्रोडन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा सा अजीब से लगते हैं पोएम में, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ट्रोडन, कैसे, ट्रोड अन, ट्रोडन, ओके। सो वॉक्ड, और अच्छा इसका अपोजिट हो गया ये, ठीक है, वांटेड, वांटेड वेयर एंड ट्रोडन। एक ऐसा पा जिसको खूब कुचला गया है ना, जिसको कहते हैं खूब धांगा गया है। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ, दिस दैट काइंड ऑफ पाथ दैट हैज बीन यूज्ड अ लॉट, है ना। सो दीज आर टू काइंड्स ऑफ paths which appear in your poem, and these paths are also appear in your lives. कुछ रास्ते पर लोग खूब चलते हैं, कुछ रास्तों पर लोग कम चलते हैं। रास्ते कई तरह के हो सकते हैं जीवन में। इट कैन, देयर आर वेज विच आर traveled a lot, on which people travel a lot, and there are ways which are not so often taken by people. And it is the case about every aspect of life. जीवन के हर अवयव पर ये चीज लागू होती है। क्या करना है जिंदगी में आगे, कैसे आपको लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन करना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, किस तरह का आदमी बनना है, सीधा साधा अच्छा ईमानदार आदमी बनना है, या मारपीट करने वाला, गाली गलौज करने वाला आदमी बनना है ना। ये सब कुछ जो है इन्हीं दो पाथ्स में से जाता है। वो कल हम पोएम में देखेंगे, पोएम इसी बारे में है। साई, एक आह। गाना तो सुना होगा, वो जगजीत सिंह की गजल है ना, एक आह भरी होगी तुमने, तो वही वाला है। और ये आह जो है गानों में भी कई बार आता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर यू फॉर वेरियस पर्पजेज, ओके। विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए आप इस वर्ड को तुरंत याद कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी वर्ड है ये। हेंस, हेंस इन भविष्य में, यहाँ से, अतः इसका मतलब होता है, लेकिन इन द फ्यूचर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली वर्ड मीनिंग। अब इसमें दो और फ्रेजेस आए, येलो वुड, जो पोएम में आएंगे। इसका मतलब है कि बदलाव, परिवर्तन। अब ऑटम सीजन, हमारे यहाँ वसंत जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है। इन आवर कंट्री ऑटम इज डिफरेंट, ओके। In their country, in England, in Europe, autumn is a very, a gleeful season, a very great season, because after long winter, a very cold, tepid, very frigid winter, very killing winter, बहुत ही खराब दुर्धर्ष शीत के बाद, जहाँ 8 महीने बर्फ रहती है, उसके बाद वसंत आता है। तो वहाँ का वसंत अलग होता है, वहाँ फूल खिलते हैं, धूप होती है, लोग जीवन का आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ का वसंत भी ठीक है, फूल खिलते हैं, लेकिन हम वसंत का वैसे इंतजार नहीं करते जैसा वसंत उनके यहाँ होता है। उनके यहाँ वसंत बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। फॉर देम, फॉर ब्रिटिश, फॉर इंग्लिश पीपल, फॉर यूरोपियन पीपल, ऑटम इज समथिंग विच दे वेट फॉर, which they crave for, because that is the time when they get the sun, the bright yellow sunlight, and there are, blossoming of flowers everywhere, there is greenery everywhere. This is not the case with us. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ग्रीनरी बरसात में हो जाती है, खूब घास पात उड़ जाती है, उग जाती है पूरे भारत में। सो हमारे यहाँ उस तरह से वसंत को नहीं मनाया जाता, हालांकि मनाया जाता है। तो उनके लिए वसंत जो है एक परिवर्तन का प्रतीक है ना, इसलिए इसको येलो वुड कहा गया। ये येलो वुड आएगा कल, इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रेज है, वे लीड्स ऑन टू वे। दिस मीन्स वंस चॉइस और पाथ इन द लाइफ नेचुरली लीड्स टू अनदर, मेकिंग इट वेरी हार्ड टू एवर टर्न अराउंड एंड गो बैक टू द बिगिनिंग, है ना। एक रास्ता दूसरे रास्ते को मिलता है और हम फिर वापस नहीं जा पाते हैं पुराने रास्तों पर। ठीक बात है कि नहीं बात है? यू कांट गो बैक टू क्लास 7 फ्रॉम क्लास 9, ओके। यू कांट सिंपली डू दैट, हाउ सो मच यू लाइक those days, or how so much you miss one of your classmates, one of your friends, but you can't go back, what you're getting, what I'm saying। आप पुराने समय में वापस नहीं जा सकते, है ना। आपको कैसा भी अच्छा लग रहा हो, आपने उस समय चॉइस कर ली कि आपको 7th क्लास में फेल नहीं होना है, 8th क्लास में जाना ही है, पास होना है। जो आपने गलत चॉइस की और आप पास होते हैं, आपने ठीक से पढ़े पढ़े एंड यू सिक्योर्ड गुड मार्क्स और वट एवर मार्क्स, एंड यू join the next class. Now you cannot undo the effects of that decision. आप उस निर्णय के परिणाम को बदल नहीं सकते, इसका मतलब यही है। तो ये रहा वर्ड मीनिंग। अब हम थोड़ा यूसेज देख लेते हैं, ठीक है। यूसेज का मतलब क्या है, इसके हिस्से में मैं आपको वो बताऊंगा कि जो आप इस कविता में आया है, ये मैं हर पार्ट में कर रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू द फ्रेजेस एंड वर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर ओन राइटिंग और स्पीकिंग, ओके। सो हियर
uh, in this poem, you can use these phrases. Since it is a poem, it is not a normal text, prose. So here, as it is here mentioned, that it can be very effective for essay writing. आपका जो अनसीन पैसेज आता है, आपका जो ऐसे वो जो लेटर राइटिंग आता है, और जो भी राइटिंग आता है उसमें आप इसको मोटिवेशनल स्पीच वो तो आपको देना नहीं है, लेकिन आप यूज कर लो, यू कैन क्राइम इट, वो तो हमें देना नहीं है। और एवं रिफ्लेक्टिंग इन ए पर्सनल जर्नल, है ना, अपना जो आप डायरी लिखते हैं उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आप लिखते हैं तो। सो टू रोड्स डाइवर्ज्ड फेसिंग कोर एवरीडे मीनिंग, मतलब इसका मतलब यह है कि जो दो इनस्केपेबल चॉइसेस हैं, दो लाइफ की उसकी, वो डाइवर्ज हो गए। आफ्टर ग्रेजुएशन टू रोड्स डाइवर्ज फॉर मी, है ना, 8th क्लास के बाद मेरे लिए दो रोड डाइवर्ज हो गई। समझ गए, इस स्कूल में पढ़ें कि उस स्कूल में पढ़ें, यही रोड डाइवर्ज हो गई, ये आप कह सकते हैं ऐसे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल टू मेक इट इंटरेस्टिंग। आई गेस यू होप इट, आई गेस यू आर गेटिंग इट। एंड द रोड लेस ट्रेवल्ड, अनकन्वेंशनल पाथ, है ना, पापा मुझे फोटोग्राफर बनना है ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, दैट इज लेस ट्रेवल्ड पाथ, दो इट इज नॉट द केस एज ऑफ नाउ। देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ नो यूज। तो अभी बहुत सारे लोग ये सब काम कर रहे हैं, और लेस ट्रेवल पाथ इज नो लेस, not at all less traveled these days. So still you can choose some other path which is not yet traveled more. So way leads to the way, अभी हमने बोला कि एक way इसको डिस्कस किया हमने, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकता। यू कैन express it like this, that sorry I can't travel both, I can't do English and mathematics at the same time, or I can't be good at geography and chemistry at this, good at both the subjects at same time. So I got a job offer from both London and Tokyo. I'm truly sorry I could not travel both, ठीक है, like this has made all the difference. अब इसको मतलब एक सिंगल टर्निंग पॉइंट को ये इंडिकेट कर रहा है, कि माई बीइंग सो ब्रिलियंट और सो डलर्ड हैज मेड ऑल द डिफरेंस, है ना, इसको आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट मी बीइंग रियल डलर्ड हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मैं बहुत वो मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैं चूंकि एक बड़ा बड़ा गधा हूँ, इसलिए जो है वो चीजें बदल गई, उससे अंतर आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल है। इस तरह की बातों को आपको एक्सप्रेस करना है आपके जीवन में। ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्रेस सच थिंग्स बिकॉज these are your real life situations. Okay, so you have to express yourself in English, and whatever life situation is, if you express it in English, it becomes better. Okay, so you better express your life situations in a standard Robert Frostian, or this way, so it will help you to navigate your life in a slightly different or easy manner. So with this dear student, I wind up today's class, and tomorrow I will explain the text, and will continue the session. I hope you are liking these lessons, and as it is traditionally said, since it cannot be said in real class when I'm teaching you in offline, then I cannot say please subscribe and hit the hit the like button. That is not the option. There in real class, only teacher subscribes and hits the whatever buttons he like. But here, if you like the lessons, you do subscribe, because a lot more is queued up, and a lot of really very interesting and fun material is coming for you to absorb. Okay, good day.